So we have discussed the concept of right hand limit, left hand limit, उसका अप्लाई करेंगे हम, लेकिन बिफोर ऑफ दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया जाए. द फर्स्ट वन, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स में. लिमिट x टेंस टू 0 e raised to power x minus 1 divide by x. That is the first form, e raised to power x minus 1 divide by x, and that is nothing but 1. Standard form, limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 upon x, and that result is 1. और इसका हम अच्छा खासा यूज करने वाले हैं. बट बाय द वे कैसे आ गया ये, दो अप्रोच और दोनों देख लीजिए. फिलहाल तो आपको समझना है. x टेंस टू 0 e raised to power x minus 1 upon x, स्टैंडर्ड रिजल्ट है. e raised to power 0, x tends to 0 रखने पे it is taking which form? x tends to 0 रखने पर it is taking the form of e raised to power 0 is 1, 1 minus 1 is 0, it is taking the form of 0 by 0. ये 0 by 0 का फॉर्म ले रहा है. It is taking the form of 0 by 0. 0 by 0 का फॉर्म ले रहा है. We have discussed the approach of L'Hospital rule. देखें जरा, उसको भी देखें, सीखें उसको. Limit x tends to 0. According to that rule, numerator and denominator are differentiated separately provided indeterminate form is of type 0 by 0 or infinity by infinity. So derivative of e raised to power x, e raised to power x, derivative of 1, 0, divided by derivative of x, 1. Was in the form of 0 by 0. L'Hospital rule का यूज किया. Now we say x tends to 0 e to the power x upon 1, x tends to 0 e raised to power 0, it is 1. Easily we are getting limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x is 1. अभी किसी प्रकार का कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, दैट्स अ फाइनाइट वैल्यू 1. एक और अप्रोच देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 फॉर द सेम क्वेश्चन. e raised to power x, I have discussed the series here. e to the power x की सीरीज सबसे पहले लिखी थी हमने, that is 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube by factorial 3, right, minus 1 divided by x. 1 से 1 कैंसिल किया, x को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, x कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है. लिमिट x टेंस टू 0, इट इज 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 एंड हायर डिग्री टर्म्स. सिंपल सी बात है, व्हेन आई से लिमिट x टेंस टू 0, ये सारी टर्म्स वो तो 0 बनने वाली x टेंस टू 0 पर, and you are going to get 1. दोनों तरीके से देखा आपने. एंड फाइनली यू आर गेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म इज लिमिट x टेंस टू 0 e raised to power x minus 1 divide by x is equals to 1. ठीक है. One more standard form, the second one, सिंपल सी बातें लेकिन पता होना चाहिए. लिमिट x टेंस टू 0 a raised to power x minus 1 divide by x. It is a to the power x minus 1 upon x. Instead of e to the power x, if it is a to the power x, fine. Presently it is in which form? तो presently it is in the form of x tends to 0 रखने पर, बहुत सिंपल है यार, a raised to power 0, 1 minus 1, 0, 0 by 0 का फॉर्म. एंड यू कैन अप्लाई L'Hospital रूल, है ना. यहाँ पर भी मैंने L'Hospital की बात करी थी. Here also I have applied here so that मैं आपको समझा भी दूं कि क्या होता है रूल. सिंपल है. It is limit x tends to 0
डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, एंड ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स log a. Derivative of 1 is clearly 0 and derivative of x is 1. X tends to 0. Now it is not making any of the indeterminate form because denominator already 1 आ गया. X tends to 0, a to the power 0 1 log a. ठीक है. Second approach could be, if you remember just now I have written the series of a to the power x also with the help of e to the power x. Exponential series की help से I have written the series of a to the power x also. उसको भी आप place कर सकते हैं. Same result you are going to get log a. That's the standard form. Limit x tends to 0, a to the power x minus 1 upon x is log a. ये रिजल्ट से जो तैयार होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्टली आप इनको अप्लाई करेंगे. limit x tends to a, x raised to power n minus a raised to power n on x minus a. That's again standard form. Limit x tends to a, x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a. That result is, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, and that is nothing but n into a raised to power n minus 1. बोले सर कैसे आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. x tends to a, प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ x tends to a पर इट इज इन द बहुत बेसिक से रिजल्ट हैं. इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, ये 0/0 के फॉर्म में, और 0/0 के फॉर्म में तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया. डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n विल बिकम n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1. a रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और प्लेस कर दीजिएगा x टेंड्स टू a, यू आर गोइंग टू गेट n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1. एट द सेम टाइम वन मोर अप्रोच कुड बी देयर. ये तो एल हॉस्पिटल से एक एक लाइन में आ जाते हैं, एक एक लाइन में, ठीक है ना. एक और अप्रोच की बात की जा सकती है. जस्ट थिंक ओवर दैट x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, प्रेजेंटली इट इज क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ 0/0, इनडिटरमिनेट फॉर्म में एल हॉस्पिटल के रूल्स का अप्लाई किया एंड वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट. एक और अप्रोच हो सकती है, डिवाइडेड बाय x माइनस a, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, उसको x माइनस a से डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड करना जैसा आपने 7th 8th 9th 10th में जो सीखा है उसी की हेल्प से. x रेज़ टू पावर n, इट इज x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है. देन जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट, इट विल बिकम a इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ a रेज़ टू पावर n. इस टर्म को एलिमिनेट करना है तो प्लस x रेज़ टू पावर n माइनस 2, x रेज़ टू पावर n माइनस 2 को x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये x रेज़ टू पावर a इंटू, ओके, एंड फर्दर सॉल्व कर लोगे आप, उसको पूरा डिवाइड कर लोगे एंड फाइनली आप क्या करोगे, फाइनली आप प्लेस कर दोगे, x को रिप्लेस कर दीजिएगा. 0/0 के फॉर्म से बाहर निकाल लिया आपने, उसको सिंपल डिवीजन मेथड करके आप नहीं यूज करोगे, ये आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करोगे. कैसे आ गया डाउट है वो समझा रहा हूं मैं आपको. फाइनली जब आप इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर लेके आ गए, देन प्लेस x टेंड्स टू a, इट विल बिकम a रेज़ टू पावर n माइनस 1, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, एंड इट विल बिकम a रेज़ टू पावर n माइनस 1 n टाइम्स, एंड दैट विल बी द रिजल्ट. सिंपल डिवीजन मेथड से. एल हॉस्पिटल से तो एक लाइन में आता है फिर, ठीक है ना. और आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है. इसके बाद की टर्म क्या होगी, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म देन, इट इज a स्क्वायर
x to the power n minus 3, ठीक है. Then next one is going to be a cube x raised to power n minus 4. बात बनती जाएगी. Simple division method ना, that will help you, right? Please note down this. And these are the three standard results जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर. This is the first one. Limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x is 1. This is the second one. Limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x is equals to log a. That's the second result. That is log a. And finally the third one. Many standard results are there. उनमें से ये तीन results, right? So I have given you 4 questions. Elementary level of questions are there based on the standard forms which we have discussed. First one, limit x tends to infinity, x into e raised to power 1 by x minus 1. Presently it is in which form? Presently it is in which form? पहली question की बात करें, limit x tends to infinity, x into e raised to power 1 by x minus 1. X tends to infinity, it will be 1 by infinity will be 0, e raised to power 0, 1, 1 minus 1, 0. It is in the form of indeterminate form which is 0 into infinity. और मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर एग्जैक्टली 0 है तब वो 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, तब दिक्कत नहीं. बट ये लिमिट रखने पे 0 बन रहा है, टेंस टू 0 वाला मामला है ना. दैट्स व्हाई इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. बाहर आना पड़ेगा उससे. लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई रेज़्ड टू पावर 1 बाय एक्स माइनस 1. हमने क्या कलाकारी करी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं दैट फॉर्म इज, और ये बात बहुत ध्यान से सीखने और समझने के लिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0. और ये ध्यान रखिएगा 0 इंटू इन्फिनिटी में यू कैन नॉट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. जस्ट डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ओनली. या तो आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करो और तब बात करो. जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1. आप तुरंत मुझसे कहेंगे सर यहाँ पे x टेंस टू 0 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो लिमिट है, दैट लिमिट इज क्लियरली x टेंस टू इन्फिनिटी. तो कैसे यूज करोगे, देख लीजिएगा. लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसे अरेंज किया या रीअरेंज किया, जो भी कहें आप, e टू द पावर x, e टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय x लिख सकते हैं. अभी कोई दिक्कत नहीं है. समझाने के लिए एक स्टेप और लिख देता हूं मैं आपको. इफ आई कीप 1 बाय x इक्वल्स टू t और y वॉट एवर यू से, 1 बाय x को t सब्स्टिट्यूट किया. बोले सर कर सकते हैं, क्यों नहीं. 1 बाय x को t रखा, आप डायरेक्टली भी 1 लिख सकते थे यहां पर, लेकिन समझाने के लिए 1 बाय x को t लिया. x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो t टेंस टू 0. 1 बाय x को t प्लेस किया आपने और x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो t टेंस टू 0. इट विल इनफैक्ट बिकम लिमिट t टेंस टू 0 e raised to power t minus 1 divide by t, and that's nothing but 1. सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट. इफ यू ऑब्जर्व द सेकेंड वन, फिर से ध्यान से देखना. लिमिट एक्स टेंस टू 0, पहले समझ लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 e रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2x. प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में, तो x टेंस टू 0 रखने पर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0. बोले सर अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं. लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म अवेलेबल है, डायरेक्ट बात करो. बोले सर कैसे, देखिएगा. फॉर द सेकेंड वन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1. इट इज लिमिट x टेंस टू 0 हमने क्या प्लान किया है यहाँ पर, x टेंस टू 0, 0 बाय 0 का फॉर्म है, दैट्स फाइन. बोले सर ठीक है ना, 1 रख दीजिए. लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x इज 1. नो, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1.
ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। सुनना इस बात को ध्यान से, हमने क्या कलाकारी करी, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो। बातें बहुत छोटी छोटी सी है, शायद आप अवेयर भी हों, लेकिन एक बार सीखना और समझना बहुत जरूरी। -1 से मल्टीप्लाई किया और -1 से डिवाइड किया। द रीजन इज, आप एल हॉस्पिटल से डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के एप्लीकेशन की बात करूं मैं, द रीजन इज, ये बोर्ड एग्जाम में एल हॉस्पिटल इज नॉट परमिटेड एट ऑल, है ना, जस्ट टू रिमेंबर दैट। आप स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू ही करके आएंगे। इससे आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से डिवाइड किया, बोले सर ऐसा क्यों, x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, इन दैट केस x टेंस टू जीरो, माइनस एक्स ऑल्सो टेंस टू, x अगर जीरो की तरफ टेंड करेगा तो डेफिनेटली माइनस एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो। सो लिमिट x टेंस टू जीरो, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स कैन बी रिटर्न एज 1। x टेंस टू जीरो, तो माइनस एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो, इट इज गोइंग टू बी, दोस्तों ये माइनस अपनी जगह इंटैक्ट है, माइनस ऑफ 1/2, दैट इज नथिंग बट द फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। यस, वी हैव यूज्ड दिस सेम रिजल्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया, बट द पॉइंट इज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन। तो ऐसा नहीं चलेगा कि इट इज e टू द पावर माइनस एक्स और यहाँ पे डिवीजन में x है। इफ इट इज e टू द पावर माइनस एक्स, मेक इट माइनस एक्स ऑल्सो। तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और अब मैंने इसको 1 प्लेस किया। क्यों कर सकता हूं, ये भी बहुत जरूरी बात है, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। द रीजन इज x टेंस टू जीरो, माइनस एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो, ठीक है। बिफोर ऑफ थर्ड आई डिस्कस द थर्ड, सॉरी थर्ड के पहले मैं फोर्थ डिस्कस करता हूं। चलिए प्लीज नोट डाउन दिस टू फर्स्ट। फॉर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड की बात करें, x टेंस टू a, क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। 0/0 के फॉर्म में आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं, यस यू कैन। रिजल्ट इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, इट इज गोइंग टू बी m इंटू एक्स रेस टू पावर m माइनस वन। ये ध्यान रखिएगा, a रेस टू पावर m इज अ कांस्टेंट, दैट डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 0। इसका डेरिवेटिव m इंटू a रेस टू पावर m माइनस वन मत लिखिएगा, डिफरेंशिएशन लेकिन तरीके से। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर n इज n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस वन, एंड देन प्लेस x टेंस टू a। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करना है तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डेफिनेटली राइट लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू पावर m माइनस a रेस टू पावर m डिवाइड बाय x माइनस a। x माइनस a तो कहीं है ही नहीं, नहीं है तो ले आओ, क्या दिक्कत है। x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। The reason is very clear, limit x tends to a, x raised to power m minus a raised to power m upon x minus a, standard form से it is m into a raised to power m minus 1, and in the denominator if you place the limit x tends to a, n into a raised to power n minus 1, and that's the result. ठीक है, लिख सकते हैं प्रोवाइडेड, ऐसा हमने कर दिया बिकॉज ऑफ वी आर अवेयर ऑफ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स। हमने दोनों की सेपरेट लिमिट ली है, यहाँ पर ले सकते हैं बिकॉज दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट लेने पर यू आर गेटिंग फाइनाइट नंबर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट बिकमिंग जीरो, राइट। एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन, क्या बोलते हो, लिमिट एक्सटेंस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट एक्सटेंस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और अब एक बार फिर से आपको सोचना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज देयर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में परेशानी है, 2 प्लस h और 2 माइनस h यू विल हैव टू डिस्कस सेपरेटली।
एक्सटेंस टू 2, सीधी सी बात है, 2 का मतलब एक्सटेंस टू 2 का मतलब x इक्वल टू 2 तो कतई नहीं है, x इक्वल टू 2 होता तो वैल्यू 2 हो जाती, 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 नहीं, मुझे नहीं चाहिए एग्जैक्टली 2, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, 2 प्लस h एंड 2 माइनस h, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, बोथ टेंडेंसीज मस्ट बी सेम। आप फिर कहेंगे सर अब तक के सवालों में तो कहानी फिर अचानक कैसे आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज देयर ना, इट्स बिहेवियर इज डिफरेंट। सो इफ आई टॉक अबाउट द राइट हैंड लिमिट, ध्यान से देखिएगा, इफ आई कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट, डायरेक्टली बात कर सकता हूं, दैट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। If I say right hand limit 2 plus h और left hand limit 2 minus h, what do you say? 2 plus h ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होने वाली है 2 plus h, 2 पे 2 लेकिन 2 plus h it is 2, and when I say 2 पे 2 but 2 minus h, 2 minus h पे it is going to be 1, right hand limit 2, left hand limit 1, limit does not exist, ठीक है। So we'll be discussing some more question but in next class. So we have discussed about the 3 standard forms, and those 3 standard forms were limit x tends to 0, e raised to power x minus 1 upon x, which is equals to 1. The second standard form, which is limit x tends to 0, e raised to power x minus 1 upon x is equals to, if it is a raised to power x minus 1 upon x, that is equals to log a. We also seen the derivation with the help of series and with the help of L'Hospital method. Third one was limit x tends to a, x raised to power n minus a raised to power n divided by x minus a, and that was n into a raised to power n minus 1, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म और कॉमनली यूज्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, दैट इज नोन टू बी द बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एंड दैट इज द कॉमन फॉर्म जिसकी बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equals to 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equals to 1। एक अप्रोच इसमें ये होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x 1 कैसे आ गया, तो इनफैक्ट आई हैव डिस्कस्ड द सीरीज फॉर sin x आल्सो, sin x x minus x cube by factorial 3 plus x raised to power 5 by factorial 5, डिवाइड करेंगे x से और x टेंड्स टू 0 पे you will be getting 1। प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ x टेंड्स टू 0 पर sin x by x की अगर हम बात करते हैं, दैट इज क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, इन 0 by 0 के फॉर्म में तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई L'Hospital रूल, and according to the L'Hospital rule, derivative of numerator and denominator separately that we have discussed, derivative of sin x is cos x and derivative of x is 1, और x tends to 0 पे cos 0 will become 1, you will be getting this result। दो तो ठीक है, लेकिन आपकी बुक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी अप्रोच दी होती है, whether it is NCERT or some basic level of books, limit x tends to 0 sin x upon x equals to 1, they have derived with the help of Sandwich theorem। सैंडविच रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x को 1 डिराइव किया हुआ है। आई विल बी डिस्कसिंग दैट सैंडविच थ्योरम आल्सो, दैट इज देयर टू एवेलुएट द लिमिट्स आल्सो। लिमिट के एवेलुएशन में सैंडविच थ्योरम का भी हम लोग यूज करते हैं, उसकी अप्रोच से कैसे 1 प्रूव करना, बट फिलहाल हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x equals to 1, and as well as these 3 forms which we have discussed। और स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x equals to 1, and based on this only, limit x tends to 0, based on this only, if I ask you about tan x upon x, so it can definitely be written as tan x को लिखोगे आप sin x by cos x, and limit x tends to 0 sin x by x is 1, using this previous result, x tends to 0 पे cos 0 is equals to 1, so finally limit x tends to 0 tan x upon x is also equals to 1, whether it is limit x tends to 0 sin x upon x is 1, limit x tends to 0 tan x upon x equals to 1।
डायरेक्ट हम इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे. वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्म इज देयर टू इवेलुएट द लिमिट्स, और ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं. और आई हैव सजेस्टेड यू, आपकी बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं, हम तो सिखाने में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी बता रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी बता रहे हैं, और एट द सेम टाइम सीरीज का एप्लीकेशन भी बता रहे हैं आपको. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से आप करके आएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में प्लीज डू यूज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ओनली, है ना. वन मोर स्टैंडर्ड फॉर्म इज देयर, दैट इज अबाउट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एंड अगेन इंपॉर्टेंट वन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 plus x and raised to power 1 by x, that is equals to e. Limit extends to 0, 1 plus x raised to power 1 by x is equals to e. So x tends to 0, actually it is in the indeterminate form. ये नया फॉर्म जो आपने क्लास 11th में शायद नहीं देखा होता है, हमें वैसे भी 11th 12th से मतलब नहीं है, हम नए सिरे से बात कर रहे हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 plus x raised to power 1 by x is equals to e. प्रेजेंटली अगर मैं आपसे कहूँ जो फॉर्म्स हमने डिस्कस किए, दोज वेर इन टर्म्स ऑफ 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बट इफ यू ऑब्जर्व द इंडिटर्मिनेट फॉर्म हियर, x tends to 0 पर it is 1 plus x raised to power 1 by x, x tends to 0 पर it is a form of indeterminate form which is 1 raised to power infinity. I have discussed you 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 1 raised to power infinity, 0 into infinity, 0 raised to power 0, all those are there in category of indeterminate form. It is 1 raised to power infinity, and 1 raised to power infinity indeterminate form में आपको ये भी समझाया गया था कि 1 अगर exactly 1 है तो exactly 1 raised to power whatever is going to be 1, but it is tends to 1 because x tends to 0 रखने पर you are getting 1 here. It is coming 1 because of it tends to 1 because you have kept limit here, है ना. So it is 1 raised to power infinity form. Limit extends to 0, 1 plus x raised to power 1 by x equals to e. और इसी का दूसरा फॉर्म कहा जा सकता है, that is limit extends to infinity, 1 plus 1 by x raised to power x is also equals to e. बड़े सारी दो अलग अलग एक्चुअल में दोनों एक ही हैं. अगर आप इस सेकंड को ऑब्जर्व करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 plus 1 by x raised to power x, एक सिंपल सी बात है यार. अगर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, प्रीवियस डिस्कशन में भी हमने कहा है 1 by x को अगर मैं मान लीजिए t कंसीडर करता हूं, इफ आई टेक 1 by x इक्वल्स टू t, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो t टेंड्स टू 0, मतलब दीस टू फॉर्म्स आर सेम. चलिए देख लीजिए, इफ आई टेक 1 by x इक्वल्स टू t, 1 by x को t रखता हूं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, t टेंड्स टू 0, and in fact it will become limit t tends to 0, 1 plus t raised to power 1 by t, and it is nothing but e. So these two are one in the same form only. Limit x tends to 0, 1 plus x raised to power 1 by x is e, as well as limit x tends to infinity, 1 plus 1 by x raised to power x is also equals to e. Now the point is how to derive this result. कैसे derive किया जाए? Yes, we discussed that also. आप भी सोचिए जरा, how to derive this result? So yes, we are going to derive this result. Limit x tends to 0, 1 plus x raised to power 1 by x is equals to e. देखिएगा, we are solving limit x tends to 0, 1 plus x raised to power 1 by x. Presently it is in the form of 1 raised to power infinity, 1 raised to power infinity के फॉर्म में. लिमिट x tends to 0, क्या किया हमने, ध्यान से देखेंगे, इसको लिखा कुछ ऐसा, लिख सकते हैं सर? तो जरूर लिख सकते हैं, e raised to power log with base e, it is going to be same 1 plus x raised to power 1 by x, कोई प्रॉब्लम नहीं है. log m raised to power n is n log m, it is limit x tends to 0, e raised to power log 1 plus x, and 1 by x comes in the multiplication, it is 1 plus x divided by x. 1 by x comes in the multiplication using the property log m raised to power n is equals to n log m, and finally it will become, दोस्तों, limit x tends to 0, e raised to power log 1 plus x upon x can be written as e raised to power limit
एक्सटेंस टू 0 log 1 plus x upon x। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, दैट लिमिट वाज e रेज़ टू पावर log 1 plus x upon x and then limit extends to 0। अभी क्या किया मैंने, आई हैव रिटन हियर e रेज़ टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x। बोले ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। आई हैव डिस्कस्ड वन ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। आपको जरूर ध्यान आएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of g of x, limit extends to a f of g of x can be written as f of limit extends to a g of x provided limit extends to a g of x। ये जो वैल्यू आ रही है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए g of x, इस वैल्यू पे फाइनाइट तो होना चाहिए, वो तो ठीक बात है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू fx must be defined। भाई दो फंक्शन है ना यहाँ पे, कंपोजिट फंक्शन है, f of g of x इज अ कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं कि fx है और एक gx है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए gx एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, लेकिन फाइनाइट वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर fx अनडिफाइंड ना बन जाए। इसका सीधा सा मतलब fx कंटिन्यूअस रहे या fx के डोमेन को सेटिस्फाई करे, जो भी आप कहें, राइट। तो प्रेजेंटली अगर आप यहां पे देखते हैं तो e रेज़ टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x, that limit extends to 0 log 1 plus x upon x is nothing but 1। और 1 के लिए एक्चुअल में दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं। बोले सर यहाँ पे कौन सा fx और कौन सा gx, हमें समझ में नहीं आया। बोले आपने यहाँ पे कैसे बात करी, कैन यू टेल मी कौन सा fx और कौन सा gx। वन फंक्शन इज e टू द पावर x, एक फंक्शन है e रेज़ टू पावर x विच इज fx, और जो gx है दिस इज द gx log 1 plus x upon x, और f of g of x is the composite function which is e raised to power log 1 plus x upon x। Point is limit extends to 0 log 1 plus x upon x, that value is equals to 1। ये वैल्यू है 1 के बराबर। So result is, और 1 e raised to power x is clearly defined for all real values। In fact 1 पे कोई परेशानी नहीं है, it is e raised to power 1 which is e। आप तुरंत क्वेश्चन रेज करेंगे, बोले सर ये क्या हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x, आपने डायरेक्टली 1 लिखा है। In fact it is also one of the standard form। I have discussed the standard forms, उसी का डिस्कशन चल रहा है, and in that category the standard form is also there, that is limit extends to 0 log 1 plus x upon x and that is equals to 1। आप कहेंगे सर कैसे आ गया, शायद बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसको डिराइव करना। देखो प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म, log 1 plus x upon x। ध्यान से कर देखें आप, x टेंड्स टू 0 पर log 1 is 0, इट इज प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, 0 by 0 का फॉर्म है, 0 by 0 का फॉर्म है। यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। मान लीजिए अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल यहीं पे ऐसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको, एल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो log 1 plus x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x, और डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x इज 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और x टेंड्स टू 0 पर इट इज गोइंग टू बी 1। At the same time log 1 plus x, if you remember in the previous class I have given you the list of series। log 1 plus x की सीरीज है x minus x square by 2 minus x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to power 4 by 4। अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, x कॉमन लीजिए, कर सकते हैं log 1 plus x की सीरीज प्लेस कर दी, x कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, x टेंड्स टू 0 पर सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी एक्सेप्ट 1, रिजल्ट इज 1। दैट्स अगेन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की कैटेगरी में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x minus 1 upon x is 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to power x minus 1 upon x is log a, limit x tends to a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equals to n into a raised to power n minus 1। That's again a standard form। We have discussed limit x tends to 0 sin x upon x 1, limit x tends to 0 tan x upon x 1, limit x tends to 0 log 1 plus x upon x is 1। That's the standard form, and based on this limit x tends to 0 1 plus x raised to power 1 by x is equals to
ई। ये बहुत काम में आएगा फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्म का आप यूज करेंगे 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, जो आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, है ना। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई, और इसी का दूसरा फॉर्म था लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स रेस्ट टू पावर एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ई। ठीक है ना। Now we are discussing the questions based on those standard forms. So we were discussing about the standard forms. So standard forms में 1, 2, 3, 4, 5 questions I have given to you, and one by one we are going to solve these questions. First one, limit extends to 0. 1 minus cos 2x into sin 5x divided by x square into sin 3x. एक बात तो clear है, presently it is in which form? Form तो हम देख लें कि किस form में है. So definitely x tends to 0 पर clearly it is in the form of 0 by 0. There is no doubt in that. 0 by 0 के form में that means you are going to apply in not necessarily in L'Hospital rule. That is one of the method, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की हेल्प से रिलेटिवली आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो अननेसेसरी हम जब इसके मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज यू विल हैव टू गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द टू, सॉरी you will have to go for the derivative of numerator and denominator separately. हो सकता है वो लंबा हो जाए, हम उससे आसानी से कर लेंगे. 1 minus cos 2x, trigonometric ratios and identities comfortable हैं. 1 minus cos 2x directly we are going to write 2 sin square x into sin 5x divided by x square sin 3x. एक सिंपल सी बात है, sin x वाला फंक्शन है और हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से परिचित हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज क्लियरली इक्वल टू 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1. बस उसी बात का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इज देयर sin स्क्वायर x. दोस्तों sin स्क्वायर x इज नथिंग बट sin x इंटू sin x. तो sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, definitely this factor is clearly going to be equals to limit x tends to 0 sin square x upon x square is going to be 1. Sin 5x is there. Okay, for sin 5x we'll have to think about sin theta by theta. Limit theta tends to 0 sin theta by theta is 1. It is, बोले सर ठीक है, x tends to 0. दोस्तों x tends to 0 तो 5x also tends to 0, उसमें दिक्कत नहीं है, but you will have to convert in the form of sin theta by theta, and for that sin 5x है multiplication and division by 5x, sin 3x है sin थीटा बाय थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 3x. बहुत आसानी समझ में आता है, एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं. यस, दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू डिस्कस इन क्लास 11th आल्सो, बट हमें करना होगा दोबारा. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. नाउ आई एम गोइंग टू कीप द लिमिट्स, और जब मैं लिमिट रख रहा हूं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी 1. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 5x, इट्स 1. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x, इट्स 1. x से x कैंसिल होगा एंड दैट रिजल्ट इज सिंपली 10/3. और एक और बात ध्यान से देखिएगा, कई बार जो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को पढ़ा है वो अप्लाई हर जगह हो रहा है. यहां पर मैंने सेपरेटली लिमिट्स रखी है, मैं यहां पर आपने ऑब्जर्व किया है, लिमिट फॉर दिस फंक्शन, लिमिट फॉर दिस फंक्शन, लिमिट फॉर दिस फंक्शन रख सकते हैं, प्रोवाइडेड यस वी आर गेटिंग द फाइनाइट वैल्यू एंड विच इज नॉट मेकिंग डिनोमिनेटर 0, कोई इशू नहीं है. सो वी कैन कीप द लिमिट सेपरेटली. ठीक है ना. रिजल्ट इज 10/3, दैट्स ओके. इफ यू लुक फॉर द सेकंड को देखिए, बहुत टाइम तो नहीं दूंगा मैं आपको. Limit extends to 0. 10 raised to power x minus 2 raised to power x minus 5 raised to power x plus 1 upon x 10x. देखो a to the power x के फॉर्म में दिख रहा है, सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आपको ना. 10 raised to power x, 5 raised to power x, 2 raised to power x, a to the power x. 10 raised to power x और 2 raised to power x अरेंज कर लिया जाए. कैसे अरेंज किया जाए? If I take 2 raised to power x कॉमन आउट ऑफ दिस, देखिए जरा, 2 raised to power x को कॉमन लिया, दैट विल बिकम 5 raised to power x माइनस 1. ठीक है ना. माइनस ऑफ
5 रेस्ट टू पावर x माइनस 1 अपॉन x 10x। एक कलाकारी यहीं पर देख लो आप। यस वी आर अवेयर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज 1। देखो यहां डिनोमिनेटर में x tan x है, ये tan x है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय x। बोले सर क्या कारण है? कारण ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x को मैं सीधे सीधे 1 बना दूंगा। हटाओ उसको, रख सकते हैं सेपरेट लिमिट, रख सकते हैं, फाइनाइट लिमिट है, नॉट मेकिंग द डिनोमिनेटर 0, सो आई हैव केप्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इज 1 और इसको हटा दिया। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फिलहाल लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x 1, देयर इज नो पॉइंट इन दैट, दैट्स गुड। x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और उसको लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 बना दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, two factors are there, 2 raised to power x minus 1 into 5 raised to power x minus 1 divided by, it is x into x which is x square. We have discussed the standard form, limit x tends to 0 a raised to power x minus 1 upon x log a, तो a to the power x minus 1 upon x log 2, a to the power x minus 1 upon x log 5, that is nothing but log 2 into log 5, log 10 लिख दें, लिख मत देना है ना, log 2 into log 5। क्या बोला समझ में आएगा? log 10 नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लीकेट है ना, log mn, log m प्लस n ऐसा कुछ मत करना, या mn मत करना, कुछ भी उल्टा सीधा प्रॉपर्टीज का यूज करना, मिसयूज नहीं करना। क्लियर है क्या? वी हैव यूज्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x log a। सीधे सीधे से दिख रहा था। अच्छा tan x को यहीं पे काम तमाम कर दिया, tan x बाय x 1 हटाओ और न्यूमरेटर में तो फैक्टराइज किया है, a टू द पावर x माइनस 1 के फॉर्म में लेके आए। नाउ अटेम्प्ट रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस प्लीज। वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की एलसी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म? डेफिनेटली 0 बाय 0 का फॉर्म में, tan 0 0 sin 0 0 0 बाय 0 का फॉर्म में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की हेल्प ले रहे हैं। tan x को लिखा हमने sin x अपॉन cos x, sin बाय cos, एंड वी हैव टेकन sin x कॉमन, डायरेक्ट लिखें चलेगा। tan x को sin x बाय cos x, sin x वी हैव टेकन कॉमन, 1 माइनस cos x अपॉन cos x इंटू एक्स क्यूब। कोई परेशानी तो नहीं किसी को? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। tan x को sin x बाय cos x ही लिखा है, sin x कॉमन लिया है और एलसीएम लिया, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, x टेंड्स टू 0, देखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज tan x, x इंटू tan x, हमने क्या किया था, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 बना लिया था। लाइकवाइज ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 इज नथिंग बट 1, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले तो फिर सब जगह रख दो, नहीं सब जगह वाली बात नहीं है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस फंक्शन विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज 1, बात बन जाएगी। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ, sin x, x क्यूब इज अवेलेबल, sin x बाय x 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर x by 2 divided by x square into 1 by cos x. Again if you observe 2 sin square x by 2, मुझे तो मेरा टारगेट क्लियर है, sin थीटा बाय थीटा के फॉर्म में लाना है,
इट इज साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू, तो डेफिनेटली मुझे क्या लगेगा, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा ना, साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू. माई रिक्वायरमेंट इज 4. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्म है, ठीक है यार. साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाय एक्स 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 4 इज 1, and cos 0 is clearly equals to 1. That result is 2 by 4, that's 1 by 2. ठीक है ना, सोचना तो नहीं पड़ रहा है ना कुछ. लिमिट अल्फा टेंस टू पाई बाय 4. इसी के साथ में एक डिस्कशन और कर लूं, मैं यहीं पर बता देते हैं आपको. अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan x माइनस साइन एक्स, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, लिमिट फाइंड आउट करना है. व्हाट इज लिमिट हियर? लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स. बोले सर करके बताएंगे तब तो बता पाएंगे. इनफैक्ट रिजल्ट आपके सामने है, मत सोचिए ज्यादा. tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, आपने क्या सॉल्व किया था? लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, राइट. आपने क्या कलाकारी करी है, साइन क्यूब एक्स, और वही डिस्कशन मैंने पहले भी किया था, है ना. अर्लियर tan x को देखते हुए tan x बाय x को 1 बनाया था, ठीक वैसे ही साइन क्यूब एक्स इज देयर. And yes, we are aware of limit x tends to 0, sin x upon x is 1, sin cube x है, x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब से डिवाइड किया, so that limit x tends to 0, sin cube x upon x cube will become 1. सेपरेट लिमिट रख सकते हैं, yes we can. It is becoming 1, कोई दिक्कत नहीं है. आप चाहो तो इसको लास्ट में ले जाके लिमिट रखना, बट यू कैन कीप हियर ओनली. इट विल बिकम द सेम प्रॉब्लम यार. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एंड दैट रिजल्ट इज ऑलरेडी नोन टू यू, दैट इज हाफ. बात समझ में आई क्या समझाना चाह रहा था मैं आपको? कर सकते हैं, सब जरूर कर सकते हैं, दैट इज द ओनली पॉइंट. tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, yes you can definitely go for multiplication and division by x cube, and you can keep limit x tends to 0, sin cube x upon x cube 1. There is no doubt in that. ठीक है, लिमिट रिजल्ट रिमेन सेम, दैट रिजल्ट इज हाफ ओनली. आ रहा है ना समझ में? ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस ही हैं, है ना. If you look for limit alpha tends to pi by 4, sin alpha minus cos alpha upon alpha minus pi by 4. Presently clearly it is in the form of sin pi by 4 cos pi by 4 1 by root 2 1 by root 2 0 0 by 0 के फॉर्म में है ना. प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0. अगर मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई करके बता देता हूँ मैं आपको. डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन अल्फा, डेरिवेटिव ऑफ साइन अल्फा cos अल्फा, डेरिवेटिव ऑफ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ अल्फा माइनस पाई बाय 4, क्लियरली विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा. अल्फा का डेरिवेटिव 1, पाई बाय 4 का 0, अल्फा टेंस टू पाई बाय 4, अल्फा cos अल्फा 1 by root 2, sin अल्फा 1 by root 2, 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2, that is root 2. That is with the help of L hospital rule. आप कहेंगे सर विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, वो भी देखना चाहेंगे हम, जरूर देखें. सेम क्वेश्चन,
साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस पाई बाय 4। हिंट तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही दे रहा है हमें। अल्फा टेंस टू पाई बाय 4 हमने कलाकारी करी। लिमिट अल्फा टेंस टू पाई बाय 4, साइन अल्फा कॉस अल्फा और पाई बाय 4 को देखते हुए रूट 2 से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड। क्लियर है? रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सो दैट इट इज बिकमिंग लिमिट अल्फा टेंस टू पाई बाय 4 रूट 2 into sin a cos b minus cos a sin b, that can be kept as sin alpha minus pi by 4 divided by अल्फा माइनस पाई बाय 4। बात खत्म हो जाती है। साइन लिमिट अल्फा टेंस टू पाई बाय 4, साइन अल्फा माइनस पाई बाय 4 अपॉन अल्फा माइनस पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1। और बोले सर कैसे? देखो कैसे। अल्फा माइनस पाई बाय 4 को मान लीजिए t, अल्फा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू t, इट विल बिकम साइन t अपॉन t। अल्फा माइनस पाई बाय 4 को t लिया है तो अल्फा टेंस टू पाई बाय 4 तो t टेंस टू 0। बात तो वही हो जाएगी, क्या वही हो जाएगी? लिमिट t टेंस टू 0 साइन t अपॉन t 1। आया क्या समझ में? अल्फा माइनस पाई बाय 4 आई हैव केप्ट t हियर, इट विल बिकम, नहीं यार लगता नहीं, बोले सर रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अल्फा माइनस पाई बाय 4 को t रखा तो भैया अल्फा अगर अल्फा टेंस टू पाई बाय 4 तो क्लियरली t टेंस टू 0। नाउ लिमिट चेंजेस, यस, लिमिट t टेंस टू 0 रूट 2 इंटू साइन t अपॉन t, दैट्स 1 इंटू रूट 2। दिस इज द विथ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, खास बात नहीं। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 माइनस एक्स टेन पाई एक्स बाई 2। सबसे पहली बात तो हम ये देखें ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है यार। इट इज प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म? तो प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 इंटू इन्फिनिटी। एंड यस यू आर अवेयर ऑफ इट्स नॉट एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 0 वाली बात होती तो 0 हो जाता, बट इट इज टेंस टू 0 एंड यस वी हैव डिस्कस 0 इंटू इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। सॉल्व कैसे किया जाए? दो मेथड है, दोनों देखिएगा। एल हॉस्पिटल रूल की बात करना चाहें कर सकते हैं, प्रोवाइडेड if it is coming in the form of, after keeping the limits, if it is coming in the form of 0 by 0 or infinity by infinity. Presently it is not in the form of that. क्या हम convert कर सकते हैं उससे? देखें जरा, लिमिट x tends to 1, it is 1 minus x upon, बड़ा इंटरेस्टिंग सा अप्रोच है, cot pi x by 2. Limit x tends to 0, sorry, limit x tends to 1 1 minus x upon cot pi x by 2. अब जरा चेक करिएगा, earlier it was in the form of 0 into infinity, and if you check now it is clearly in the form of 0 by 0, and if it is in the form of 0 by 0 then there should not be any doubt in applying the L Hospital rule, provided function is differentiable, both the function numerator as well as denominator those are differentiable. L Hospital rule का उपयोग किया आपने। L Hospital, it's limit x tends to 1, derivative of 1 minus x, so derivative of 1 minus x minus 1, अब डिफरेंशिएशन गलत नहीं होना चाहिए, cot pi x by 2, derivative of cot theta minus of
cosec स्क्वायर थीटा इनटू फंक्शन ऑफ फंक्शन भूले नहीं है, पाई एक्स बाई टू का डेरिवेटिव पाई बाई, क्लियर है ना? ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, and again we are going to check whether it is coming in the form of any of the indeterminate form. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, न्यूमरेटर में ऑलरेडी ये -1 आ चुका है, दैट्स ओके. नाउ पुट द लिमिट x tends to 1 cosec pi by 2 sin pi by 2 1 cosec pi by 2 1. It's yes, you are getting the result easily 2 by pi. And yes, we have applied here L'Hospital rule. कर लिया, क्यों? क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था इन फॉर्म ऑफ 0 by 0. नहीं कर सकते थे तो, अगर नहीं कर पाते तो नहीं करते. ठीक है, यस. पाई एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों? ये एक पॉइंट है, इसको भी डिस्कस जरूर कर देता हूं मैं. इस बारे में भी डिस्कशन करने वाला था, लेकिन डाउट है उसको जरूर क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ. देखिएगा, व्हाट इज सजेस्टेड इज, इनका कहना है, सोचा तो ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 इट इज 1 माइनस एक्स. हमने जो डिस्कस किया है वो कहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेन एक्स बाय एक्स 1. लेकिन एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर 10 पाई एक्स बाई 2, व्हाट ही सजेस्टिंग इज कि सर पाई एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. प्रेजेंटली वैसे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है, वो कैसे करना मैं सिखा रहा हूँ आपको, लेकिन डायरेक्टली इसको 1 नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते. ठीक है, आई एम डिस्कसिंग दैट. चलिए, ये एक अप्रोच हुई, दैट इज थ्रू L'Hospital रूल. कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप सोच रहे हैं कि सर ये विदाउट L'Hospital रूल भी देखें हम, जो आप कह रहे थे पाई एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, वैसा तो नहीं हो पाएगा, वो ठीक नहीं होगा. लेकिन हम विदाउट यूजिंग L'Hospital रूल भी इसको जरा सॉल्व करें. देखिए, x टेंड्स टू 1, हमने क्या किया, x टेंड्स टू 1 1 माइनस एक्स 10 पाई एक्स बाई 2, we have kept 1 minus x equals to t. बहुत ध्यान से देखिएगा अप्रोच. 1 minus x we have kept equals to t. Definitely when x tends to 1, x अगर 1 की तरफ टेंड करेगा तो t tends to 0. पहले समझ लीजिएगा, t tends to 0. लिमिट t tends to 0, 1 minus x is t 10. देखो, जब मैंने सारी बातें t के टर्म्स में चेंज करी, सब्स्टिट्यूट किया है, तो सब कुछ t के टर्म्स में होगा. दैट x has been kept as, x को t के रख, क्या लिखोगे, 1 minus t, सब कुछ t के टर्म्स में ले आए. लिमिट t tends to 0, t times 1090 minus theta, 1090 minus theta cot theta. ठीक है, बोले सर अब क्या करने वाले हो. अब देखिए जरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x अपॉन x 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज 1, इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज 1, इट इज t इंटू कॉट पाई t बाई 2. या तो इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, या इसको कॉस साइन के टर्म्स में चलिए 10 के टर्म्स में कन्वर्ट किया. लिमिट t tends to 0, t upon
10 पाई टी बाई 2। बोले सर अब क्या करना चाह रहे हो, सुनो ध्यान से। देखो जब t टेंस टू 0, if t tends to 0, then pi t by 2 also tends to 0। अरे जब t 0 की तरफ टेंड करेगा तो pi t by 2 is also tends to 0। बोले सर उससे क्या बताना चाह रहे हो, उससे ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय पाई टी बाय 2। लिमिट t टेंस टू 0, 10 pi t by 2 upon pi t by 2 becomes 1। t से t कैंसल होगा and you are going to get same result which is 2 by pi। that is without using L'Hospital rule। इसमें हमने L'Hospital rule की बात नहीं करी है, स्टैंडर्ड फॉर्म की यूज किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब tan थीटा बाय थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, बस उतनी बात का यूज किया हमने, राइट। I have kept 1 minus x equals to t and every step is clearly in front of you, right? Both the steps are clear, both the approaches are clear। So again I have given you 3 plus 3 6 questions, ठीक है ना, और आपको अटेम्प्ट करना थे वो। लिमिट x tends to infinity x into e raised to power 1 by x minus of e raised to power minus 1 by x। फर्स्ट क्वेश्चन को लिया जाए, x tends to infinity, presently it is in which form? ये बन जाएगा 1 by infinity 0 e raised to power 0 1 1 minus 1 0 0 into infinity के फॉर्म में है ये फर्स्ट वन। लिमिट x tends to infinity, क्या किया जाए, क्या सोचा आपने? प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी वाले फॉर्म में है, कैसे बाहर लाया जाए उस इंडिटर्मिनेट फॉर्म से? दैट इज व्हाट अबाउट द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का? 2 minus 2 0। चलिए देखें, इज 1 by e raised to power 1 by x minus of e raised to power minus 1 by x divided by 1 by x को डिनोमिनेटर में लेके आए। देन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, e raised to power 1 by x minus 1 प्लस 1 माइनस 1 वाली बात करी हमने यहाँ पर। e raised to power 1 by x minus 1 minus of e raised to power minus 1 by x minus 1 divided by 1 by x। ठीक है, बोले सर क्या किया? -1 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों किया, रीजन क्या है? तो रीजन डेफिनेटली हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करना चाह रहे हैं। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? दैट स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज अवेलेबल टू अस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power 1 by x minus 1 upon x is equals to 1। बोले सर ये तो इन्फिनिटी है, तो आप जानते हो ना 1 by x will become 0, इसलिए परेशानी नहीं है। दोनों को सेपरेट किया, लिमिट x tends to infinity e raised to power 1 by x minus 1 divided by 1 by x minus of e raised to power minus 1 by x minus 1 divided by 1 by x। सेपरेट किया फिलहाल मैंने इसको, ठीक है। And the standard form limit x tends to 0 e raised to power x, limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 upon x is equals to 1। ठीक है ना,
तो लिमिट यहां पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट्स ओके। 1/x को अगर आप t रखोगे, इफ यू कीप 1/x इक्वल टू t, it will become e raised to power t minus 1 upon t. When t tends to 0 it will become 1. बोले सर हो गया ना, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 minus 1 0। इस बात की केयर करना होगी हमें यहाँ पर। इट इज e raised to power minus 1/x। 1/x को t तो आप रखने वाले हो, लेकिन सेकंड की बात करें तो या तो 1/x को t रखें या माइनस 1/x को t रखना होगा। इसका मतलब ये e raised to power minus 1/x minus 1 upon 1/x है। आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, या ये कि ये -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, माइनस से अपनी जगह जैसा है, e raised to power 1/x minus 1 upon 1/x is becoming 1. This minus minus will become plus, and e raised to power minus 1/x minus 1 divided by minus of 1/x, when x tends to infinity, also becomes 1, and that result is 2. That final result is 2. आया समझ में क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया हमने यहाँ पर। बोले सर कैसे कैसे क्या, 1/x को t ले लेना यार, और सेकंड की बात करें -1/x को t लेके समझ लीजिएगा। इट इज -1/x हियर, so you'll have to multiply and divide by minus sign. एक छोटी सी बात देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 upon x is equal to 1, दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं आपसे पूछता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power minus x minus 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या लिख के आओगे आप? लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power minus x minus 1 अपॉन x, आप 1 तो नहीं लिखोगे ना यहाँ पर, बिकॉज इट इज माइनस x इज हियर, so multiplication and division by -1, आप समझ रहे हैं, and that's what is happened here also. Multiplication and division by minus sign is going to be equals to -1. फिलहाल result of that is 2. ठीक है, limit x tends to 0 e raised to power x square minus cos x upon x square. Presently it is in which form? x tends to 0 e raised to power 0 1 cos 0 1 1 minus 1 0 0/0 के फॉर्म में। प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, 0/0 के फॉर्म से बाहर लेके आना है। एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, चलिए एल हॉस्पिटल ट्राई करते हैं फर्स्ट, एंड देन वी विल आल्सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। चलिए दोनों देखते हैं। पहले अभी हमारा पर्पस है कि आपको सारी बातें सिखाना, सीख जाओ आप लोग। x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ। प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, I have applied here for the second one L hospital rule. L hospital apply किया, limit x tends to 0 e to the power x square, derivative of that e raised to power x square का derivative 2x e raised to power x square। ये कतई जरूरी नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल के एप्लीकेशन से चीजें जल्दी आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं। हमेशा लगता है ना एल हॉस्पिटल रूल बेस्ट है, मतलब फटाफट फटाफट इससे आ जाता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इट विल बिकम प्लस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x। अगेन वी चेक, प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म? x टेंड्स टू 0 की बात की जा रही है, x टेंड्स टू 0 पे 0 0 0, presently it is again in the form of, it is again coming in the form of 0/0, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। अगेन यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स, दोबारा किया जा सकता है उसको अप्लाई। इट विल बिकम लिमिट x tends to 0, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, 2x का डेरिवेटिव दैट विल बिकम 2 टाइम्स x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर। बोले सर इसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे? प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट ही करना है आपको तो प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही होगा। दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ x इंटू e रेस्ट टू पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e रेस्ट टू पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e रेस्ट टू पावर x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x।
x टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में 2 है, अभी प्रेजेंटली किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली रिजल्ट आएगा x टेंस टू 0, रख दीजिए 0, x टेंस टू 0 इट विल बिकम 0, x टेंस टू 0 e रेज़ टू पावर 0 दैट्स 1, 1 मल्टीप्लाइड विथ 2, 2 cos 0 1, 2 plus 1 3, 3 डिवाइड बाय 2, रिजल्ट इज 3 बाय 2। लेकिन यहाँ पे आपने जब एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया तो आपने यहाँ पे 2 बार अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के बाद अगेन इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। सिंपल डेरिवेटिव लिया है, डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए आज की तारीख में, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया और अगेन देन वी हैव केप्ट द लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि सीखना तो आपको सभी कुछ है, हो सकता है कि विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल कैसे करोगे? लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। यस, हमने ये बात तो ऑब्जर्व कर लिया कि प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0, 0 बाय 0 के फॉर्म में e टू पावर x स्क्वायर, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, क्या करने वाले हैं? एनीबॉडी विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल? प्लस माइनस 1, यस, e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस x प्लस माइनस 1 वाली बात करी, ठीक है, ठीक सोच रहे हैं आप लोग। माइनस 1 प्लस 1 इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वाज द e रेज़ टू, यस, e रेज़ टू पावर 1 बाय x माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय x प्लस माइनस 1 वाली बात करी थी और सॉल्व किया था। लाइकवाइज ठीक सोच रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। दोस्तों इट इज माइनस साइन, 1 माइनस कॉस x, इनफैक्ट ये हो जाएगा प्लस, प्लस लिख देते हैं, 1 माइनस, माइनस साइन कॉमन लिया ऐसा बोल दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट, बात बन गई। x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1, लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज ऑल्सो 1। बात समझ में आई क्या? बोले सर ऐसे कैसे 1, क्यों? x टेंस टू 0 तो x स्क्वायर ऑल्सो टेंस टू 0, x 0 की तरफ टेंड करेगा तो x स्क्वायर ऑल्सो टेंस टू 0, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर is x tends to 0, x square also tends to 0, this limit will become 1, 2 sin square x by 2 upon x square, definitely sin theta by theta के फॉर्म में, for that 4 से multiply, 4 से divide, right, and then you can definitely keep sin square x by 2 upon x square by 4 equals to 1, it is 2 by 4, 1 plus 1 by 2, 3 by 2। रिजल्ट क्लियर है? बोथ द अप्रोच। Now look for remaining questions. Now the third one, limit x tends to infinity, a raised to power x sin b upon a raised to power x. Limit x tends to infinity, a raised to power x sin of b upon a raised to power x. बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, 2 स्टेप प्रॉब्लम ओनली। x टेंस टू इन्फिनिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x टेंस टू इन्फिनिटी, a रेज़ टू पावर इन्फिनिटी ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी। कन्वर्ट कर लिया हमने बहुत सिंपल से वे में। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ b अपॉन a टू द पावर x, दैट इज द एंगल ऑफ दैट, डिवाइडेड बाय इस a टू द पावर x in the denominator, and clearly b upon a to the power x, b से मल्टीप्लाई, b से डिवाइड, ठीक है। x tends to infinity, if it is x tends to infinity,
ए रेस टू पावर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, समझ लीजिएगा इस बात को जरा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, सो ए रेस टू पावर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एंड बी बाय ए रेस टू पावर एक्स टेंस टू 0। ये बात अलग है कि ऐसा तभी होगा जब a रेस टू पावर x टेंस टू इन्फिनिटी, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर a की वैल्यू लेस देन 1 होगी ना, 0 से 1 के बीच में अगर होगी तो दैट विल बिकम 0। फिलहाल हम ये कंसिडर कर रहे हैं a इज ग्रेटर देन 1 ईयर, b अपॉन a टू द पावर x टेंस टू 0 एंड इफ इट इज लाइक दिस इट विल बिकम द लिमिट b बाय a टू द पावर x को आप मान लीजिएगा t, इट इज, समझ गए क्या, b बाय a टू द पावर x टेंस टू 0, x टेंस टू इन्फिनिटी, आपने b बाय a टू द पावर x को मान लिया t, इट विल बिकम लिमिट t टेंस टू 0 sin t बाय t into b, है ना, this 1 by b will become b there, limit t tends to 0 sin t by t becomes 1 and that final result is b, result is b here, ठीक है। If you look for the fourth one, limit x tends to 0, 1 plus 7x square upon 1 plus 3x square raised to power 1 by x square. The standard form, today only we have discussed the standard form, and that was limit x tends to 0, 1 plus x raised to power 1 by x is equals to e। पुरानी बात नहीं, आज ही की बात है, डेरिवेशन से ही देखा है हमने। If you observe here, limit x tends to 0, 1 plus 7x square, इसको लिखा जा सकता है 1 plus 7x square raised to power 1 by x square as well as 1 plus 3x square raised to power 1 by x square, सेपरेट कर लिया। x tends to 0, 1 plus 7x square raised to power 1 by x square and 1 plus 3x square raised to power 1 by x square। क्या करेंगे आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है। एक और बात है, सुन लेना, x tends to 0, तो x square also tends to 0 and 7x square also tends to 0 and 3x square also tends to 0, so उसमें कोई परेशानी नहीं है। x tends to 0, so x square also tends to 0 without any doubt, we can definitely say 7x square tends to 0 as well as 3x square also tends to 0। ये इसलिए समझाने के लिए लिख रहा हूं ये सारी बातें। बोले सर क्या करना चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं इफ इट इज 1 plus 5x रेज़ टू पावर 1 by x, तो कितना रिजल्ट होगा, समझ लीजिए इस बात को। इफ इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, इफ इट इज 1 plus 5x रेज़ टू पावर 1 by x, रिजल्ट क्या लिख के आने वाले हो आप? अरे ये 5x है ना, तो आपको इधर भी तो 5 बनाना होगा। 1 plus x raised to power 1 by x, if it is 1 plus 5x raised to power 1 by 5x is going to be equals to e। If it is like this, you will have to convert in the form of फाइव से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, so that you can write limit x tends to 0, 1 plus 5x raised to power 1 by 5x e, and it will become e raised to power 5, and that's what is happening here। It is 1 plus 7x square raised to power 1 by x square, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, so that it becomes in the standard form 1 plus 7x square raised to power 1 by 7x square, समझ रहे हैं आप, और उस पूरे की पावर 7 है। अगेन ये भी बात कंपोजिट फंक्शन वाली बात होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये रिजल्ट लेके आ पाते हैं। दैट इज कमिंग एज e raised to power 7 डिवाइडेड बाय e raised to power 4 is the final result there। क्लियर है?
वन प्लस सेवन एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर वन बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7 है तो मुझे यहाँ पर भी 7 लगेगा, 1 प्लस लेमडा एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय लेमडा एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर ये 1 प्लस 10x होगा इट मस्ट बी 1 बाय 10x, नहीं है तो बनाओ 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, रिजल्ट इज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स की जब हमने बात करी थी तो प्लीज उसमें एक काम ऐसा करिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय एक्स दैट इज इक्वल टू ई, और साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस लेमडा एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय एक्स दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ई रेस्ट टू पावर लेमडा, जिसका हमने यूज किया अभी। व्हाट अबाउट दिस, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, a is greater than 0 but less than b and limit n tends to infinity b raised to power n plus a raised to power n raised to power 1 by n, what is that result here, anybody? अच्छा, anybody else? ठीक है, अटेम्प्ट तो करिए, जरूरी है। अल्फ्रेड, हे क्लास में हो, अच्छा क्या रिजल्ट क्या आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b रेस्ट टू पावर n प्लस a रेस्ट टू पावर n रेस्ट टू पावर 1 बाय n, इसलिए इंटरेस्टिंग है, देखिएगा b इज ग्रेटर देन a एंड बोथ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, है ना, b इज ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन 0, फाइन, क्या कलाकारी करी हमने, और ये बहुत जगह हेल्प करेगा। b ग्रेटर देन a होने के कारण a बाई बी कैसी वैल्यू होगी, a by b is going to be a fractional value because b is greater than a, so definitely a by b is a fractional value, बस इस बात को हम यूज कर रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, we have taken b raised to power n common out of that bracket, like this, b रेस्ट टू पावर n को कॉमन लिया, बोले सर ऐसा क्यों, a बाई बी विल बिकम अ फ्रैक्शनल वैल्यू, सुनिएगा ध्यान से, a बाई बी विल बिकम अ फ्रैक्शनल वैल्यू रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी दैट विल टेंड्स टुवर्ड्स 0, फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू डिक्रीज होगी, और a बाई बी रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी विल बिकम 0, it will become 1, 1 by infinity will become 0, 1 raised to power 0 will become 1, यहाँ पे n से n कैंसिल होगा, रिजल्ट इज b into 1 which is b। और एक और बात समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में होता b is less than a but greater than 0, अब अगर a b से ग्रेटर होता, उस केस में जो आपकी अप्रोच होती है वो क्या होती, शायद क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, क्लियर होगी अप्रोच, इफ इट इज लाइक दिस देन अप्रोच इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a ग्रेटर देन b है, किसको कॉमन लेने वाले हो अब की बार, a टू द पावर n को कॉमन लोगे, सो दैट b बाय a विल बिकम अ फ्रैक्शनल वैल्यू देयर, और हमारा टारगेट है कि फ्रैक्शनल वैल्यू रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी विल बिकम 0, क्लियर है? इन दैट केस दोनों लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक रहेगा। ठीक है, दैट रिजल्ट इज ए। लास्ट वन,
What is that result for last one? Limit x tends to 0, 1 minus cos x into root over cos 2x upon x square. Presently it is in the form of 0 by 0. Presently तो ये 0 by 0 के फॉर्म में. कुछ ऐसा सोचा जाए, 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर कॉस 2x से मल्टीप्लाई किया. मैंने यहाँ पे एल हॉस्पिटल नहीं प्लान किया है, कर सकते थे, लेकिन यह ध्यान रखना कि वो बहुत आसान तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज जब एल हॉस्पिटल का यूज़ करोगे तो न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे आप. और एक और बात है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा तो हो सकता है कि एक बार डेरिवेटिव लेने से भी बात नहीं लगेगी. यू हैव टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल ट्वाइस, और वो टिपिकल हो सकता है. ये ध्यान रखिएगा, करके देखिएगा, बनाने की कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है. एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर कॉस 2x. एक्स टेंस टू 0, cos 0 1, cos 0 1, इट विल बिकम 1 प्लस 1 2. ये पॉइंट तो मैंने यहीं पर सॉल्व कर लिया, समझ रहे हो क्या? 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर कॉस 2x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया. x टेंस टू 0 पे cos 0 1, cos 0 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2. इसकी वैल्यू 2 रख के डायरेक्टली इसको यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं. वी हैव टेकन द लिमिट सेपरेटली, क्योंकि ये डिवीजन में आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो वैल्यू है, कोई इशू नहीं है. इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 2 रखेंगे अब हम. बट व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? 1 माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स cos 2x upon 2x square, because I have kept here, इसको मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है ना. अब जरा सोचिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, हाउ टू सॉल्व दिस? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, उसका यूज करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर. जस्ट थिंक ओवर दैट, हाउ कैन वी यूज दैट? कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कुछ है इसको? जस्ट डू इट, करिए बरा. कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बहुत कुछ है रास्ते. थिंक ओवर दैट. सो वी वर सॉल्विंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर. आपने फर्दर सॉल्व किया, आई थिंक इट विल बिकम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 2x 1 minus cos 2x. In fact 1 minus 1 is as it is, 1 minus cos 2x plus sin square x cos 2x divided by 2x square. Limit x tends to 0, 1 minus cos 2x plus sin square x cos 2x upon 2x square, 1 minus cos theta, yeah, 1 minus cos 2 theta can be written as 2 sin square theta. टू साइन स्क्वायर एक्स, यहीं पे डिवाइड कर लीजिए इसको, 2x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर. लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा 1, ये बन जाने वाला है. साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट विल अगेन बिकम 1, cos 0 1, इट विल बिकम 1 प्लस 1 बाय 2, 3 बाय 2, राइट. पूरा सॉल्व कर लिया हमने. देयर आर मेनी इक्वेशंस विच आर बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स. अटेम्प्ट करना है आपको, उनको सॉल्व करना है.
Now look for this question again, one more interesting previous year JEE question. Limit x tends to 0, sin of pi cos square x upon x square. करिए जरा सॉल्व. So these 4 questions for you, and all 4 questions are from previous year JEE exam. These 2 questions, second and third from 2003 screening, this fourth one from 2004 screening, और ये उससे पहले की एग्जाम पूछा गया exactly in IIT. First one, limit x tends to 0. फर्स्ट वन काफी इंटरेस्टिंग इस सेंस में इंटरेस्टिंग है चारों इनफैक्ट. फर्स्ट वन थोड़ा इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0. कई बार जब इसको बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर x, एक काफी बड़ी बात आप यहाँ पे सीख लेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर. बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते क्योंकि वो एक रिजल्ट से बड़ा फेमिलियर होते हैं, और वो रिजल्ट होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा दैट इज इक्वल टू 1. काफी कॉमन सा रिजल्ट है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 या लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1. अब तक हमने भी काफी क्वेश्चंस किए उसके ऊपर बेस्ड. साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ठीक है सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई. साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो बोले सर हो जाएगा, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया और डेफिनेटली मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड दोनों करना होगा. डिवीजन वाली बात करिए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा. द रीजन इज साइन थीटा बाय थीटा आप चाह रहे थे. आपने कहा ठीक है सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम 1. दिस इज पाई कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स टेंड्स टू 0. अभी आपने इसमें लिमिट रख दी, इसको 1 बना लिया. एक्स टेंड्स टू 0 पर cos 0 विल बिकम 1. इट विल बी पाई डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड. आप कहेंगे सर आपने बताया था लिमिट कुड बी प्लस इन्फिनिटी, लिमिट कुड बी माइनस इन्फिनिटी, तो रिजल्ट ऑफ दिस इज प्लस इन्फिनिटी, और वो गलत होगा और बहुत बड़ी गलती होगी इसमें, है ना. बहुत बड़ी एरर होगी अगर ऐसा हम कर लेते हैं. द रीजन इज, और इस बात को समझिएगा, एक्स टेंड्स टू 0. अब तक हमने इसीलिए जब जब सवाल किए हैं तो मैंने साथ में लिखा है और समझाया है कि यार x टेंड्स टू 0 तो x स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो 7x स्क्वायर टेंड्स टू 0 तो 3x स्क्वायर टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 तो माइनस एक्स टेंड्स टू 0. लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1, है ना. जब x 0 की तरफ टेंड करता है तो साइन x भी 0 की तरफ टेंड करता है और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड करता है, तब जाके लिमिट 1 होती है. लेकिन x टेंड्स टू 0 के केस में पाई कॉस स्क्वायर एक्स पाई कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 cos 0 1 पाई कॉस स्क्वायर एक्स टेंड्स टू पाई. इट्स नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0. आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं. ये बहुत समझने वाली बात. x टेंड्स टू 0 तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0. अगर ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, आप उसको साइन थीटा बाय थीटा 1 बना लेते. ये बात बहुत ठीक ढंग से समझ में आना चाहिए. ऐसा नहीं हो रहा है. x टेंड्स टू 0 पर पाई कॉस स्क्वायर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, तो वी कैन नॉट अप्लाई द लिमिट x टेंड्स टू 0, वी कैन नॉट मेक इट 1. ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है ना. अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं उसको भी समझ लिया जाए, और उसे ध्यान से देखिएगा प्लीज. अब क्या करना चाहिए, डायरेक्टली ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है. आप जो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, it will become sin of pi minus pi sin square x, sin of pi minus pi sin square x, sin 180 minus theta, that will become sin theta, sin of pi minus pi sin square x, sin 180 minus theta is sin theta. It will become limit x tends to 0 sin of pi sin square x upon x square
ये बात समझ में आई ना आपको? कुछ बड़े बात नहीं, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, एंड द पॉइंट इज x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो के लिए पाई साइन स्क्वायर एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो। तो अब परेशानी नहीं है, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड कीजिए एंड मेक इट साइन थीटा बाय थीटा 1 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द रीजन इज एज एक्स टेंस टू जीरो पाई साइन स्क्वायर एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो, so limit x tends to 0, sin of pi sin square x upon pi sin square x will become 1, sin square x upon x square will become 1, and that final result is equals to pi। ये बहुत बढ़िया बात है जो समझ में आना चाहिए, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लिमिट्स में कंसेप्ट्स की बात, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और उनको सीखना समझना काफ़ी ज़रूरी। Now look for second question. Limit x tends to 0, a minus n into nx minus 10x into sin nx upon x square equals to 0. Limit is given to you as a finite number 0. इस क्वेश्चन में भी अगर आप ऑब्जर्व करें, 2003 स्क्रीनिंग का सवाल है, लिमिट इज गिवन टू यू एज अ फाइनाइट नंबर 0, राइट। आपको गिवन है कि n इज नॉन जीरो रियल नंबर, आपको a फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा, a माइनस एन इंटू एन एक्स माइनस 10x इंटू साइन एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सबसे पहला काम किया और इसी स्टेप पे कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर को लिखा मैंने x इंटू एक्स, इसी यहीं पर देख लीजिएगा, लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर 0, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। साइन एन एक्स अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर था उसको x इंटू एक्स लिखा, n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड। रीजन इज, बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप समझ चुके हो। लिमिट x टेंस टू 0, साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स विल बिकम 1। x टेंस टू 0 तो एन एक्स ऑल्सो टेंस टू 0, so there should not be any doubt in keeping sin nx upon nx equals to 1। limit x tends to 0, sin nx upon nx 1। ठीक है, ये स्टेप तो क्लियर है ना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। देन limit x tends to 0, n is already given to you as a non zero real number। n साफ साफ दिया है प्रॉब्लम में कि n नॉन जीरो रियल नंबर है ना, n is not 0। तो n टाइम्स लिमिट x tends to 0, a minus n into n x divided by x minus of, ये this is divided by x minus 10x upon x, that is equals to 0, sorry, limit is a finite number 0, that is provided to you। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। साइन थीटा बाय थीटा 1 बना लिया उसको, और जो एक्स रिमेनिंग एक्स था उसको डाल दिया ब्रैकेट में, डिवाइड कर दिया अनफैक्ट उससे। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हुआ। n इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज नॉन जीरो रियल नंबर, n जीरो नहीं है, n जीरो के बराबर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब लिमिट x टेंस टू 0, a minus n into n minus of 10x upon x must be equals to 0। x टेंस टू 0 पर यहां तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही गया था ये x, तो a माइनस n इंटू n माइनस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 10x by x 1, that must be equals to 0। limit is given in the problem itself as 0, so a minus n into n is equals to 1, a is equals to 1 by n plus n। कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी दोस्तों, सीधी सी बात करी है। साइन थीटा बाय थीटा को 1 लिखा है और टेन थीटा बाय थीटा को 1 लिखा है, थीटा टेंस टू 0 पे। और क्या किया बता दो आप जरा, इस क्वेश्चन में किया क्या आप ये बता दो। यहाँ साइन एन एक्स था,
तो साइन थीटा बाय थीटा बना के 1 लिखा है इसको, x को अंदर डिवाइड कर दिया है और टेन थीटा बाय थीटा को फिर से 1 लिखा है, उसमें क्या परेशानी बता दीजिए। बट दैट वाज द प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेफिनेटली, प्लीज नोट डाउन।